Okay. So namaste and welcome all of you to Get Set Up. Thank you all for joining. And as we know that Get Set Up is a platform where we are meeting and we are having, lot of. Yes, Sri Devi ji, you're saying my voice is breaking. No, I think there Yeah, must be issue and at in your between, end. I don't know. What in about others? between there was a pause also. No, but I think for others, You, what? you just inquire from others. Yeah, 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 okay. it's okay actually. Only from my side. Yeah. So maybe Is it network issue okay? at Then your end. Yeah, Vinaji, is that fine? maybe. No, no. Network is Fine fine for at me. me. Fine Ah, with us. okay. Okay. Or maybe Yeah. something wrong from this side, maybe. Yeah, maybe. Yeah. So yeah. Hello, everyone. Hello. Yeah. Long time. No, I can't hear you, Uh, Sridevi ji. Sridevi, I think your this thing bandwidth is a bit low probably because your voice is breaking. Maybe. This is Yeah. the first time. Usually, nowadays it's happening very Okay. often. So I think I'll start. Maybe some Just see, problem. Anyway, I'll be on. Let me see yeah. how much Maybe you can log out and log in and try it again one more time. I however don't know whether it maintenance works or not. try. That's all. Yeah. Can start Okay. the money. Yeah, yeah, I'm starting it. So we are here. Actually, today I'm not able to share the link. I mean, I can see a lot of people, those who are new, and I mean, most of you are there in the group. But if you're not in the group, you please join the WhatsApp group. But honestly speaking, today I'm not able to share the WhatsApp link also because, as I said, my own laptop was not working, so I have started with some other laptop. It's not theirs, it's not saved. So let me start. Okay, I forgot today's topic which we are going to discuss. Today's session is in Hindi. चलिए हिंदी में ही बात करते हैं. तो मैंने ये सोचा कि मॉर्निंग में मोशन नहीं इमोशन है, ऐसा जब मेरे दिमाग में आया तो मैंने ये टॉपिक बताया तो लोगों को बहुत अजीब लगा ये क्या है. But those whom I can see on the screen, I don't know. Veena ji, how do I go to the gallery view? Because I Top can में see only 3-4 people. no right and top view करके है ना Got it, उसमें क्लिक got it. करो. Yeah, Okay. yeah. So हाँ ठीक है, got it. हाँ. So please all of you put on your video. मेरे ही सेशन में कोई अपना वीडियो नहीं ऑन करता है, सिर्फ 4-5 लोगों के अलावा बाकी सबके सेशंस में वीडियोस ऑन रहते हैं. हेलो शुभांगी जी. या सो आज गीता जी इज हाई, ज्योति, तनुषा, मीरा, जो मुझे दिख रहा है ना अभी स्क्रीन पे नाम, सूजी, डोरेन, आप लोग प्लीज अपने वीडियो ऑन कीजिए. एटलीस्ट मैं सबको देख सकती हूँ क्योंकि ऐसे होता है कि हर बार, या हाय डोरेन, हर बार ऐसे होता है कि मैं ही सिर्फ बोलते जा रही हूँ और मेरा ध्यान भी नहीं रहता है कौन है कौन नहीं है. तो टुडे एक्चुअली आई वांट टू सी एवरीवन. हाँ फाइन, गुड. सो गुड आफ्टरनून. ओके, सो मैं ये कह रही थी आज का सेशन हिंदी में है तो पूरी हिंदी में ही बात करते हैं. तो मैंने जब टॉपिक दिया था मॉर्निंग में मोशन नहीं इमोशन है तो बहुत अजीब लगा हेलो सबको कि ये क्या टॉपिक है. बट अब मुझे एक बात बताइए, टेल मी ऑनेस्टली कि मॉर्निंग व्हेन वी गेट अप एंड इफ द बाउल मूवमेंट इज नॉट क्लियर, ओके, सो एक चिड़चिड़ापन या एक तरह का फटीग या एक तरह का समथिंग यू फील लाइक यू गेट इरिटेटेड. Am I right? This is something लगेगा बहुत अजीब लगेगा. Why this discussion? But this is very important when Yes, we yes. talk in terms of health. Very important. Yes. But please, Acha, we'll do the same thing like last week we did. Okay, that was a very nice thing which we did. Everybody has to put Y or N on the chat box so quickly because all of us are learning technology ना. तो फटाफट अगर आपको लगता है मॉर्निंग में उठ के मोशन नहीं हुआ है और आप उससे परेशान हो रहे हैं, इरिटेशन हो रहा है, तो यस प्लीज पुट वाई on the chat box, comment box. Yes, I
Okay, mainly aged people. Geeta ji saying, okay, all of you are saying yes. Okay, fine. So अगर मैं बोलूं कि मॉर्निंग में मोशन नहीं इमोशन है तो कुछ गलत होगा? यस, गलत होगा? अगर नहीं तो आप नो डालो एंड यस ऑलरेडी डालना शुरू कर दिया है वीणा जी। ओके फ्रॉम ओके फाइन नो यस ओके। अब ये कॉन्स्टिपेशन की जब हम बात करते हैं या फिर जो बाउल मूवमेंट हमारा प्रॉपर नहीं होता है तो दिस इज नॉट अ डिजीज। ओके, ये डिजीज नहीं है, लेकिन अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो इसकी वजह से डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं। ओके, सो ये बाउल मूवमेंट की इश्यू जो है ये क्यों होता है, हमें किस लिए होता है? द रीजन इज बिकॉज वन इज जब फूड जब डाइजेस्ट होता है, लाइक फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड द फूड हैज टू एंटर थ्रू द माउथ, इट गोज टू द esophagus, from there it goes down to the small intestine, then large intestine, then the undigested food is thrown out, the digested food is utilized by each and every cell of our body, right? एक सिंपल सा एक साइंस है। अब जब फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज क्या हो रहा है कि बहुत धीरे धीरे धीरे, इट्स नॉट एक दिन में, आपने ध्यान नहीं दिया अपने हेल्थ पे, अपने फूड पे, अपने एक्सरसाइज पे, बहुत सारे रीजंस है। तो फूड क्या होता है, धीरे 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 वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए इंटेस्टाइन में रह जाता है, और जितना ज्यादा टाइम वो इंटेस्टाइन में रहेगा, वो नीचे जब तक मूव नहीं होगा, तो जितना भी मॉइस्चर है, कोलन जो है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने लगता है। फिर जब वो धीरे धीरे वो अनडाइजेस्टेड फूड जब नीचे जाता है बहुत स्लोली, उसके बाद में जब हम हमारा जो मोशन होता है अगर वो बहुत ज्यादा हार्ड होने लगा है, दैट मीन्स वी आर सफरिंग फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। ये एक साइन है। दूसरा साइन है कि दिन में एटलीस्ट वन टाइम वी हैव टू पास द स्टूल, because the undigested food has to be thrown out, so minimum one time. So there are people who go to the washroom, say to pass the bowel movement के लिए 2 to 3 times भी जाते हैं, that is also normal, but minimum is one time. अगर आपका एवरीडे नहीं हो रहा है और आप 3 या 4 दिन में, 2 या 3 दिन में अगर एक बार स्टूल पास कर रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अलार्मिंग। ओके, बिकॉज क्या होता है, एट अ सर्टन एज, से फॉर एग्जाम्पल when we are at the age of say 30s, जब मिड 30s में हम लोग आते हैं, क्या बिफोर 30s, लेट 20s और स्टार्टिंग जब 30 एज का होता है, सो वी ऑल आर क्वाइट गुड इनफ अपना मतलब एवरीथिंग वी फील दैट इज हैपनिंग नॉर्मली। लेकिन जैसे ही वो एक एक स्टेज आता है, लाइफ का पास होने लगता है, मिड 30s में हम आते हैं, देयर वी रियलाइज कि कुछ इश्यू हो रहा है स्टूल्स का। लाइक एवरी डे वी आर नॉट गोइंग टू द बाउल मूवमेंट, नहीं हो रहा है, पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, वी स्टार्ट टेकिंग मेडिकेशन सो दैट पेट क्लियर हो। अब पेट क्लियर होने के लिए देयर आर लॉट ऑफ मेडिसिन। एलोपैथी में भी बहुत सारे मेडिसिन है। नाउ डेज पीपल थिंक कि आयुर्वेदा इज द बेस्ट सोल्यूशन, बिकॉज आयुर्वेदा में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सो दे स्टार्ट टेकिंग चूरन एंड ऑल। सो इसमें क्या होता है, लाइक देयर आर लॉट ऑफ टैबलेट्स आल्सो फॉर कॉन्स्टिपेशन आयुर्वेदा में, वेयर इन पीपल थिंक कि देयर आर नो साइड इफेक्ट, आई स्टार्ट टेकिंग, ठीक होगा। नाउ वंस यू स्टार्ट टेकिंग द मेडिकेशंस विदाउट आस्किंग, विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर, क्या होता है कि स्टूल जो है, बाउल मूवमेंट्स धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। ओके, अब ठीक होते होते फिर कैसे हो जाता है, एक हैबिट हो जाता है कि आपने 40-45 जैसे क्रॉस किया तो ठीक है, थोड़ा सा फिर जब ये मेडिकेशंस लेने लगते हैं तो आपको लगता है कि हाँ, ये स्पेसिफिक, अगर कुछ चीजें लेने के बाद में, दवाइयां लेने के बाद में भी मुझे एक वीकनेस आ रहा है मोशन होने के बाद में। Now these I am talking about the stages, if you try to understand what I am trying to say, because I have seen with people happening this, not paying attention to their bowel movement,
then after a certain age they start taking medications, that too without consulting a doctor. So initially what happens, वो हफ्ते में एक दिन होता है कोई चूरन लेना, या हफ्ते में एक दिन होता है डल्कोलक्स या इसबगोल कुछ लेना, धीरे धीरे आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम that becomes twice a week, thrice a week, फिर एक ऐसा स्टेज आता है that regularly people start taking because motion नहीं हो रहे हैं. How many of you have observed this or noticed this either with yourself or with someone else? Please put Y on the comment section. You understood now what I'm trying to say, all of you? तो ऐसा होता है ना, ये this is a very common thing. Then after completing the age of, say, after reaching your 50s or 60s, then you find कि जब, if when I am taking any particular medicine for my constipation, मुझे मोशन तो हो जाता है लेकिन उसके बाद बहुत वीकनेस होती है. दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम which most of the people they face, especially those who have crossed the age of 55-60, क्योंकि एक आदत पड़ जाती है उसमें. आप constipation क्यों होता है? There are several reasons for that. Number one is if you are not used to taking a proper diet, because I always talk about diet क्योंकि diet एक ऐसी चीज है जो नंबर 1 पे आता है. जितना भी आप बोल ले, एक्सरसाइज बोल ले, कुछ भी बोल ले, मेडिकेशंस बोल ले, बट डाइट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो नंबर 1, डाइट में कुछ ना कुछ गलती हो रही है, इसीलिए कॉन्स्टिपेशन हो रहा है. सेकेंड रीजन कॉन्स्टिपेशन का हो सकता है कि लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइजेस नहीं आप कर रहे हैं, या फिर बहुत ज्यादा सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन होता है. थर्ड रीजन मेडिकेशंस, बहुत सारी कुछ ऐसी मेडिसिन आप ऑलरेडी ले रहे हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है. फोर्थ रीजन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दो कहीं पर भी उसको एक तरीके से बोला नहीं गया, बट देन स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्ट्रेस. अगर आप बहुत स्ट्रेस अंडरगो कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन. सो नाउ देयर आर 4 रीजंस जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन होता है. अब एक एक रीजन पे अगर हम लोग आते हैं एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट कि कहाँ पे क्या किन चीजों को हम ठीक कर सकते हैं. सो लेट्स नाउ discuss on how we can overcome this problem, because constipation itself is not a disease. लेकिन अगर आपको constipation होना start हो गया है, आपका food properly digest नहीं हो रहा है और आपके motions regularly नहीं हो रहे हैं, that means toxins are going to get accumulated inside your body. जैसे ही toxins जमा होने लगते हैं बॉडी में, वो धीरे धीरे जाकर के अलग अलग बीमारियों का रूप लेता है. इसके लिए कहा जाता है कि ये एक जड़ है बीमारियों का. जड़ को हमें पूरी तरह से उखाड़ना है. अब वो कैसे उखाड़े? Now after reaching a certain age, suppose you have crossed the age of 50 or 60, जहाँ पे chronic constipation हो गया है. Okay, I'm not talking about the younger people. I'm talking only about people who have crossed the age of 50, 55, 60, 65. Chronic constipation हो गया. Now at this age, you are under several medications. वो मेडिकेशन हो सकता है बीपी के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, वो हो सकता है कार्डियो डिजीज के लिए, वो हो सकता है डायबिटीज के लिए, कोई भी बहुत सारी अलग अलग चीजों के लिए आप मेडिसिन भी ले रहे हैं. प्लस constipation हो गया. If you have watched the movie Pikku, how many of you have seen this movie Pikku? Amitabh and this Deepika Padukone, father and daughter. Please put yes. And if you have not seen the movie, please all of you watch this movie. It's such a beautiful movie. Entertaining है, at the same time you get a certain message. The whole movie is only, उसमें only अमिताभ की constipation को लेकर के मूवी बनाया है. इट इज वेरी ह्यूमरस, एट द सेम टाइम इट हैज गॉट सम मैसेज टू पास ऑन ऑल्सो. तो मेक श्योर इफ यू हैव नॉट सीन द मूवी, प्लीज डू वॉच दिस मूवी. आप पूरा एंजॉय करोगे, आप समझ भी लोगे कॉन्स्टिपेशन कितना दर्दनाक होता है. तो आपको पहली बात है डाइट किस तरह से हमें चेंज करना है. डाइट, लेट अस टॉक फर्स्ट ऑन द डाइटरी पैटर्न. नाउ as people who are regularly coming on my sessions, by now every one of you, like I can see over here, like Sridevi ji, Uma ji, Veena ji, Geeta ji, all these people are regularly coming on the sessions.
एक चीज मैं बार बार बोलती हूँ, रॉ फूड। ओके, रॉ फूड मतलब बॉडी को हम ज्यादा फाइबर सप्लाई कर रहे हैं। बिकॉज क्या होता है, एक एज होने के बाद लोगों को लगता है रॉ फूड डाइजेस्ट नहीं होगा करके। रॉ फूड आपको खाना बहुत जरूरी है। रॉ फूड का मतलब होता है कि सैलेड, अगर दांत में प्रॉब्लम है, आप सैलेड नहीं खा सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे वेजिटेबल्स को मिला के एक जूस बना के पी लीजिए, सैलेड फाइबर बॉडी को मिलेगा। फ्रूट्स, जितने भी सीजनल फ्रूट्स है, फ्रूट्स खाना शुरू कीजिए, बॉडी को फाइबर मिलेगा। जितना ज्यादा आप अपने डाइट में फाइबर सप्लाई करेंगे, उतना ज्यादा आप देखेंगे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम धीरे धीरे कम होगी। वाई यू नीड टू टेक मेडिसिन व्हेन यू कैन एक्चुअली रेक्टिफाई this particular problem only through diet. ओके, सो नंबर वन है, आप अगर आपको सॉल्व करना है ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम, तो डाइट में बहुत ज्यादा आप स्प्राउट्स और बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आप स्टार्ट करें लेना। आप कैसे ले? नंबर वन, स्प्राउट्स जो होता है वो एक तो क्या टेस्टी नहीं होता है, और वो कच्चा होता है, काटने में तकलीफ होती है। सो बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि स्प्राउट्स खाना नहीं होता, और बहुत लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि स्प्राउट्स कच्चा है तो मेरे से डाइजेस्ट नहीं होगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा। ऐसे यहाँ पे कितने लोग हैं जो सोचते हैं स्प्राउट खाने से मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा? प्लीज टाइप वाई। बिकॉज मैंने बहुत लोगों को देखा है जो बोलते हैं स्प्राउट से, स्पेशली द सीनियर सिटीजन, स्प्राउट से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है। अब आप क्या कर सकते हैं, स्प्राउट्स को जस्ट टेक 1 टीस्पून घी, उसमें सौते करके हल्का सा, यू स्टार्ट हैविंग द स्प्राउट्स। दैट्स द बेस्ट वे। वो कच्चा भी नहीं रहेगा और प्लस वो पकेगा भी नहीं, आपको उसको पकाना नहीं है। जस्ट 1 टीस्पून घी इन अ कढ़ाई, फ्रेश जो घर पे बना, अगर आपने मूंग दाल को सोक किया ओवरनाइट, नेक्स्ट डे आपने छोड़ दिया, तो विद इन 24 आवर्स स्प्राउट्स निकल जाते हैं। सो ये जो स्प्राउट बनेगा, इसको 2 से 3 दिन के लिए आप फ्रिज में रख सकते हैं, उससे ज्यादा आप मत यूज करना। सो आपने एक हर दिन एक मतलब 2-3 दिन कंटिन्यूअसली आपने थोड़ा थोड़ा निकाला, निकाल के जस्ट 1 टीस्पून में थोड़ा 1 या 2 मिनट के लिए बस सौते करके हल्का सा सॉल्ट पेपर डाल दिया, स्टार्ट हैविंग दिस। ठीक है, सो ये जो स्प्राउट है, अगर आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे लेते हैं, इट इज एक्चुअली एडवाइजेबल। कॉन्स्टिपेशन है और आप स्प्राउट्स ले रहे हैं, तो यू टेक इट ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट पे आपने जो भी आप ले रहे हैं उसके साथ स्प्राउट्स आप कंपलसरी थोड़ा सा खाना है, बहुत ज्यादा नहीं, 1 स्मॉल बोल इज इनफ। अगर आपको चाहिए तो उसमें यू कैन स्प्रिंकल प्याज, टोमेटो, धनिया पत्ता एंड ऑल दीज थिंग्स टू मेक इट मोर लुक नाइस, एंड उसको खाने का मन करेगा। So first one is start including sprout in your diet. Secondly, as I said, salad अगर नहीं अच्छा लगता है, दांत खाने में मुश्किल होती है, so make juice, different types of juices. जितना भी सीजनेबल आपको वेजिटेबल्स मिल रहा है, you have to just cut it, put it in the blender, add water, churn it, strain it and drink it. अगर आपको बिना स्ट्रेन किए भी पीने का अगर मन है, no, I'm not forcing, अगर आपको बिना स्ट्रेन किए भी पीने का मन हो रहा है तो आप वैसे भी पी सकते हैं। मेक श्योर दैट आप वो जूस ले रहे हैं। दैट्स द सेकेंड इम्पोर्टेंट, दैट्स सेकेंड गोल्डन रूल। फर्स्ट गोल्डन रूल इज टेकिंग स्प्राउट, सेकेंड गोल्डन रूल इज टेकिंग जूस और सैलेड। थर्ड गोल्डन रूल इज जितना हो सकता है फ्रूट्स इंक्लूड इन योर डाइट। ओके, सो ये फ्रूट्स आपको कौन कौन से टाइम पे खाना है? सो मॉर्निंग, सपोज आपने मंडे स्प्राउट्स ले लिया ब्रेकफास्ट में, ओके, सो फिर आप क्या करोगे, जैसे जस्ट 1 डे का मील प्लान आई शेयर हाउ यू कैन डू दैट। सो मॉर्निंग आप जब उठते हैं सुबह उठ के, सो इमीडिएटली यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ जूस, फ्रेश जूस, आपने जो भी है, क्यूकम्बर या फिर गाजर, बीटरूट, जो भी मिला आपने डाल के उसको मिक्स करके ब्लेंडर में चला के स्ट्रेन करके पी लिया। सो मॉर्निंग में आपको फाइबर का पूरा एक ग्लास मिला। ब्रेकफास्ट में आपने स्प्राउट्स थोड़ा सा सौते करके खा लिया। फिर मिड मॉर्निंग से अराउंड 11-11:30 को आपने कोई फ्रूट खाया। वो फ्रूट आप कोई भी, जैसे अभी ऑरेंजेस अवेलेबल है, ऑरेंजेस आप ले सकते हैं, एप्पल अवेलेबल है, एप्पल ले सकते हैं। सो ये कोई भी एक फ्रूट आपने ले लिया। उसके बाद में लाइक होल डे ये इतना सफिशिएंट हो गया है आपके एक दिन का फाइबर। ठीक है, अब रात को लाइक यू हैव गॉट 2 चॉइसेस।
अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा सीवियर है, ये तो मैंने जस्ट बताया, जिनको थोड़ा ज्यादा कॉन्स्टिपेशन नहीं है, थोड़ा सा लग रहा है कि मे बी बीच बीच में मोशन नहीं होते उनके लिए, बट जो जो दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम सीवियर कॉन्स्टिपेशन, फॉर देम the best thing to do is start taking bananas. Okay, banana is something, because when if I say कि आप रात को सोते वक्त बनाना लेना, तो सब लोग एकदम वो हो जाते, कैसे सोते वक्त बनाना, उसमें ये हो जाएगा वो हो जाएगा करके। लेकिन बनाना, अगर आपको ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, सो बिफोर गोइंग टू बेड, हाफ एन आवर बिफोर गोइंग टू बेड, यू कैन हैव 2 इलायची बनानास, which is going to really help you to get rid of constipation. ठीक है, अगर आपको लगता है नहीं बनाना मुझे रात को सूट नहीं होगा, fine, we have got one more option. What is this option? Warm milk. You have to take a glass of warm milk, उसमें add 1 or 2 teaspoon of ghee. ओके, घी आप ऐड करके सोने के आधे घंटे पहले, 20 मिनट पहले, ये वाला वार्म मिल्क घी डाल करके पी लेना है। ठीक है, these are 2 options which you can do it at night before going to bed. So give a gap of 20 to 25 minutes, you can do this. People who are suffering from severe constipation, तो आपने ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन लिया। अब सीवियर कॉन्स्टिपेशन वालों के लिए रात में आपने या तो दूध ले लिया या फिर केला लिया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठने के बाद में एम्प्टी स्टमक, प्लीज मेक अ नोट, इट हैज टू बी एम्प्टी स्टमक। अब पानी खाली आप पी सकते हैं ब्रश करने के पहले, लेकिन ब्रश के बाद में आपको चाय कॉफी कुछ नहीं पीना। एम्प्टी स्टमक में यू जस्ट ईट 2 एप्पल्स विथ स्किन। ओके, अच्छे से एप्पल को यू पुट इट इन वाटर, एक बड़ा सा एक कंटेनर लेके उसमें वाटर भर के यू पुट द एप्पल्स इन वाटर, कीप इट फॉर 1 आवर, बिकॉज उसमें जो भी रहेगा, इफ इट इज अनहाइजीनिक, इफ यू फील, या फिर आपको लगता है उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स है या जो भी है, वैक्स लगा रहता है किसी किसी पे, सो वो सारी चीजें जो है 1 आवर वाटर में सोक्ड रहेगा, तो वो सारा क्लियर हो जाएगा। So empty stomach में, because apple has got both soluble and insoluble fiber, तो empty stomach में you eat 2 apples. Okay, so आप जैसे ही एप्पल, आप मॉर्निंग में ये आपने 2 एप्पल्स लिया, फिर आपने, if you start having either banana or milk at night before going to bed, at the same time you are taking some sprouts for your breakfast, mid morning में also you are taking something, that is really going to help you to get rid of constipation. ठीक है, is it ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है क्या? प्लीज डू आंसर। गीता जी, हेलो यस हेलो, गीता जी, या जनरली हम लोग बोलते हैं ना, जनरली हम लोग बोलते हैं कि एप्पल खाने से कॉन्स्टिपेशन होता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है क्या? मैं वही, दूसरा जिसको और एक चीज है जिसको बनाना से वेट गेन होता है, वो रात को खा सकता है क्या? और कोल्ड में बोलते बनाना नहीं खाना चाहिए, वेट गेन। हाँ, मैं दोनों का आंसर देती हूँ। सबसे पहले एप्पल, इसीलिए मैंने बोला एप्पल में सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर है, तो अगर एप्पल का आप छिलका निकाल के खाएंगे तो उससे कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं। आप छिलके के साथ खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस कम होते हैं। सो इसीलिए मैंने कहा कि छिलके के साथ में आप एप्पल खाना, ये पहला आंसर है। और दूसरा आंसर गीता जी जो आप बोल रहे हैं, जो कोल्ड हो जाता है लोगों को, एंड ये है, ये होता भी है, कुछ लोगों को रात में खाने से कोल्ड होता है। सो आप ये जो सीजन है, जैसे ये होली स्टार्ट हो जाएगा, ठंड कम हो जाएगी, तब ऐसे लोग केला लेना स्टार्ट कर सकते हैं, बनाना लेना स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात है वेट गेन की बात है, तो हमेशा के बनाना के साथ में ये एसोसिएटेड रहता है कि वो उससे वेट बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ में आती है कि हम लोग इतनी सारी चीजें खाते हैं दिन भर में, कोई दिन मन किया तो हम लोगों ने पकोड़े खाए, कोई दिन मन किया तो हम लोगों ने पराठा खाया, कोई दिन मन हुआ तो फिर पूरी खाया, तो सिर्फ केले को लेकर के इतना लोग हवा क्यों मचाते हैं? बिकॉज केले का ऐसा, केला इज अ फ्रूट, बनाना इज अ फ्रूट, और कोई भी जो नेचुरल चीज है उसमें कभी भी ऐसे वेट, हाई कैलोरी, हाँ या गीता जी, हाई कैलोरी बोलते हैं, हाई कैलोरी बोलते हैं।
हाई हाई कैलोरी बोलते हैं। अगर हाई कैलोरी बोलते हैं, क्योंकि अगर अगर ऐसे अगर बोलने जाएंगे ना, अगर ऑनेस्टली, तो मैं एक प्रोडक्ट है, मैं उस प्रोडक्ट का नाम नहीं लेना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, बट आई विल टेल यू, क्योंकि मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं कि अपने क्लाइंट्स को अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए मुझे कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो एक ऐसा प्रोडक्ट मेरे पास आया था कोई लेके, तो ये बोला कि ये पर्टिकुलर पैक, और वो पैक जो था, पैकेट, एक जो बड़ा हम लोग का 1 लीटर का जो बॉटल रहता है उस साइज का पैकेट है, वो पैकेजिंग किया हुआ, सो पाउडर फॉर्म में, जिसका कॉस्ट है 6000 रुपीज, जो शायद 1 महीना चलेगा। तो वेट, ये स्पेसिफिकली वेट लॉस वालों के लिए ये प्रोडक्ट दिया जाता है उनको। और मुझे बहुत कन्विंस करने की कोशिश की उन्होंने कि अपने क्लाइंट्स को ये बोला दिया करो, सो दैट एक कोलैबोरेशन टाइप का वी कैन डू करके। तो मैंने कहा नहीं। अब उसमें क्या था प्रोडक्ट में, गीता जी मैं ये बताना चाहती हूँ आपको, कि उस प्रोडक्ट में उन्होंने ये बताया कि अगर आप 2 टीस्पून ये वाला प्रोडक्ट खाली पानी में डालते हैं, जस्ट नॉर्मल प्लेन वाटर में, मॉर्निंग आप उठ के 2 टीस्पून अगर डाल के पीते हैं, जो ब्रेकफास्ट का मतलब ब्रेकफास्ट नहीं करना है, in place of breakfast the person is going to drink only this 1 glass of water, adding this particular powder, 2 teaspoon of powder to it, and ये जो है आपको वेट लॉस में हेल्प करेगा। ठीक है, सो अभी मुझे बताइए, जो लोग मेरे सेशंस पे रेगुलरली रहते हैं, तो जब, और हाँ उन्होंने ये बोला, मुझे भी पता है, वो जो आप मेक बोला ना, वो पता है मुझे, आप जो बोला वो मुझे पता है। उसमें, और उसमें Yeah, क्या even I होता know, है, but we are not supposed to name any. उसमें क्या होता है पता है, वीणा जी एंड गीता जी, उसमें क्या उन्होंने बोला, उसमें इट हैज द पावर, द 2 टीस्पून हैज गॉट द पावर ऑफ 10 बनानास। ओके, 10 बनानास आप खाएंगे उतना उसमें पावर है। तो आई सेड फर्स्ट थिंग, nobody is going to eat 10 bananas together तो forget it, not even one single day कोई भी 10 बनाना खाएगा नहीं, unless and until that person is athlete, या इतना वो burn out कर रहा है कैलोरी। max to max 2 bananas we eat, right? okay, 2, उससे ज्यादा हम लोग खाने नहीं वाले हैं। okay, so मेरा ये मानना है कि बनाना is a very good, it's like गरीबों का देवता है बनाना। so if you start having banana, there is no एक जो टैग लगा है बनाना के ऊपर कि वेट गेन होगा, कुछ नहीं होता है, बिकॉज 2 बनाना खाने से नथिंग इज गोइंग टू हैपन। यस, लेकिन कोल्ड जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। सो ड्यूरिंग विंटर्स डोंट ईट बनानास, सो रादर देन गो फॉर मिल्क एंड ghee with it. Okay. Yep. Bhavani, somebody has asked, Meera Chandru. Read. Can you please tell which seed Yeah. we have to No, before eat, like, that, there is okay. one question. Before that, there is one question of Meera Chandru. Worries me, I am diagnosed with diverticulate. Diverticulate. I don't know what it is. Okay. So if you can unmute, who is this? Actually, I can't. Meera. This is Bhagyashri. No, that My question problem of is I motion pass is motion at midnight and Yeah. 3 or 4 times. Okay. Okay. Now this is something I don't know, but I would like to add here. Very much seems to be stress related. Because I have not touched that part yet. Because initially मैंने बोला था stress भी एक factor है, but आपका जो the way you have mentioned, though I mean I feel this is something related to stress. Okay, and the next one is okay about seeds. Fine. Okay, so ये जो है चीजें constipation को clear करने के लिए हम लोग ये सारी चीजें ले सकते हैं। भवानी, और दूसरी बात है, भवानी, हाँ भवानी, डायबिटीज को केला चलता है क्या? डायबिटीज को 1 केला यू कैन हैव, 1 इलायची केला इज फाइन, इससे कुछ नहीं होगा। आप 2 मत खाना, 1 खा लेना। ओके ओके। about seeds. Somebody is asking seeds which seed. Yes, this is Bhagyashri ji, right? So Yeah. which seeds to have? Okay, now seeds, all seeds are good, लेकिन अब seeds खाना कैसे है?
फ्लैक्स सीड के दो तरीके से आप खा सकते हैं फ्लैक्स सीड को। एक तो आप उसको जस्ट रोस्ट करके उसमें थोड़ा पिंक सॉल्ट डाल के आफ्टर फूड डाइजेशन के लिए यू कैन हैव फ्लैक्स सीड। अनदर वे ऑफ हैविंग फ्लैक्स सीड इज you can make some laddus out of it. If you are non diabetic, you can add gur and make laddus out of it. These are the two ways you can have flax seed. Come moving on to the sunflower seed. सनफ्लावर सीड्स भी दो तरीके से आप खा सकते हैं। अगर आप डायबिटिक नहीं है तो ये सारे सीड्स के है ना बहुत अच्छे अच्छे स्वीट रेसिपीज बनते हैं। अगर आप इसमें गुड़ या फिर डेट शुगर ये सारी चीजें मिला के आप बनाते हैं तो उसमें यू कैन मेक लड्डूज और यू कैन मेक बर्फीज एंड ऑल। या फिर और एक ऑप्शन होता है कि आप जो मसाले बना रहे हो ग्रेवी वाला, व्हेन यू आर कुकिंग यू नो ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, वो ग्रेवी में अनियन टमाटो जो हम डालते हैं, गार्लिक जिंजर, तो थोड़ा सा सनफ्लावर सीड एंड पंपकिन सीड्स एंड ऑल सोक करके उसका अलग से पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल नो लाइक फॉर मी there are certain days where I cannot use onion, okay, so उसमें मैं क्या करती हूँ, अनियन तो नहीं डाल सकते, ग्रेवी सब्जी चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं नट्स जैसे आमंड्स हो गया, कैश्यूज हो गया, पिस्ताचियोज हो गया, थोड़ा सोक करके उसका पेस्ट बनाते हैं। उसी तरह से सनफ्लावर सीड देन पंपकिन सीड्स को पेस्ट बना के उसको अच्छे से फ्राई करके यू कैन मेक दैट ग्रेवी। सो उस तरह से these seeds can also be used which is going to help to overcome constipation. ठीक है? Bhavani, I have heard actually soaking black raisins, no, the night and taking it with water early yes, morning, it helps, no? yes. Coming on to that also, yeah, because क्या होगा एक साथ बहुत सारी चीजें बोलेंगे, people are going to get scared, but then anyways, good that you have brought this point. What Uma is saying is also one point. Like ये तो सारी चीजें हैं, like you can try it out. Another thing is black raisins are very good. Black raisins you can soak say around you know some थोड़ा सा say around 15-20 soak it at night. Morning में you can have that, no need to heat it or something, just drink that water, chew, but these all things have to be done empty stomach only. आप ऐसा नहीं चाय कॉफी पीने के बाद में वो टेस्टी मुंह में ब्रेकफास्ट के लिए खा रहे, ऐसा नहीं है। उठने के बाद में खाली पेट में अगर ब्लैक रेजिन्स आप चबा चबा के खाते हैं, सो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। बहुत ब्लैक रेजिन्स के अंदर से कभी कभी सीड्स निकलता है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता है, सो इन दैट केस आप नॉर्मल जो किशमिश होता है ब्राउन वाला, दैट ऑल्सो यू कैन ईट मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक। लेकिन ब्लैक रेजिन्स जो है ज्यादा फायदा करता है, जल्दी फायदा करता है। अनदर थिंग इज अंजीर। ठीक है, अंजीर को लाइक वो जो ड्राई फ्रूट अंजीर आता है सर्कल वाला विद अ स्मॉल होल इन बिटवीन, वो वाला अंजीर यू कैन 3-4 यू सोक इट एट नाइट। मॉर्निंग में अगेन ड्रिंक द वाटर, डोंट थ्रो द वाटर, वो पानी करके यू हैव दिस अंजीर ऑल्सो। सो वी हैव गॉट लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड यू नो इफ यू एक्चुअली सी, आप हर दिन एक एक चीज कर सकते हैं जिसकी वजह से you will find that taste also you are getting lot of things you are see. For example, if first day आपने 2 apples खा लिया empty stomach में, second day आपने black raisin soak किया हुआ खा लिया empty stomach, third day आपने अंजीर खा लिया, उसके बाद फोर्थ डे आपने नॉर्मल वाला जो ब्राउन किशमिश है वो खा लिया, फिफ्थ डे आपने एक कॉम्बिनेशन किया है जैसे ये होता है ऑरेंज एंड एप्पल का, ओके, उसका जूस बना के आपने पिया है, सिक्स्थ डे ओनली ऑरेंजेस आपने लिया है, 2 ऑरेंजेस। ये सारी चीजें मैं इसलिए बोल रही हूँ कि दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, फॉर देम यू कैन ट्राई ऑल दीज ईच डे, यू नो एक एक चीज आप कर सकते हैं, आपको वैरायटी भी मिलेगा फूड में प्लस आपको। बट वन थिंग ऑनेस्टली स्पीकिंग दैट व्हेन यू आर एक्चुअली ट्राइंग दिस, अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कॉन्स्टिपेशन क्लियर करने की, सो कम से कम 15 दिन, दैट मीन्स 2 weeks, मेक श्योर दैट उठते ही डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी, क्योंकि इसका फिर कोई फायदा नहीं होगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि चैलेंज आपको थोड़ा सा एक्सेप्ट करना पड़ेगा, देन यू विल फाइंड। एंड सो और कुछ नहीं करना, ये अगर आपने 15 डेज कंटिन्यू किया, नाइट में बिफोर गोइंग टू बेड कुछ नहीं तो मिल्क विथ 2 टीस्पून ऑफ घी,
बस ये दो यू कीप स्टार्ट डूइंग. स्प्राउट्स बीच बीच में आपने खा लिया, बीच बीच में यू हैव टू स्टार्ट ईटिंग कॉन्शियसली, then only you will find this, you will get rid of the constipation. Now moving on to the next very important part, diet से थोड़ा सा जब हम आगे जाते हैं, तो एक तो है एक्सरसाइज. मेक श्योर कि आप थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज पूरे दिन में करते हैं. बिकॉज क्या होता है, मॉर्निंग हम उठते हैं बहुत अच्छे लोगों की तरह, अच्छे बच्चों की तरह उठ के वॉकिंग जाते हैं, हाफ एन आवर हर कोई जाता है आजकल. वॉकिंग किया, उसके बाद में बहुत अच्छे से जो लोग प्राणायाम करते हैं, आधा घंटा प्राणायाम कर लेते हैं. सो 45 मिनट्स टू 1 आवर आज के दिन में हर एक कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर लेता है. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद में सारा दिन हम लोग बैठे ही है, सारा दिन जब मुंह चरते जा रहे हैं, मुंह में कुछ ना कुछ डाल के और कंटिन्यूअस बैठे हैं. क्योंकि हो गया है 1 आवर तो कर लिया है वॉकिंग, सुबह 1 आवर तो एक्सरसाइज हो गया है. अब क्या, फिर शाम को फ्रेंड्स से मिलने के बहाने थोड़ा सा आधा घंटा बाहर घूम के आ जाते हैं. सो बोल के निकलते हैं घर से, छोटा सा वॉक करके आते हैं. फिर सारे फ्रेंड्स मिलके, अभी तो लॉकडाउन हो गया, अभी तो मैंने तो अपने बिल्डिंग में देखा है, सीनियर सिटीजन तो इतने खुश हो जाते हैं फ्रेंड्स को देखे, चिपक के एक टेबल में वो एक जो बेंच होता है ना गार्डन वाला, उसमें 4-5 जन बैठे और एकदम मास्क वास्क निकाल दिया, घर से बोल के सब घर के मतलब घर के लोग भेजते हैं. इवन व्हेन आई सेंड माय मदर इन लॉ ना, आई टेल हर मास्क नहीं उतरना चाहिए, बट देन व्हेन आई गो डाउन एंड सी ना, एवरीबॉडी हैज रिमूव्ड द मास्क, सिटिंग टुगेदर, इतना सब एक राउंड भी नहीं मार के बैठ के बातें बहुत कर ली. वी आर अगेन कमिंग अप. एंड मतलब उसमें क्या होता है कि एक्सरसाइज फ्रूटफुल जो हुआ था, मॉर्निंग में हुआ था, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ है. तो हमें ये ध्यान रखना है कि बीच बीच में लाइक हर 1-1.5 घंटे में उठ के थोड़ा बहुत स्ट्रेच करना है अपने आप को, और थोड़ा 10 कदम आगे चल के फिर 10 कदम पीछे चल के वापस आप बैठ जाना है. सो इसको खाली 1 से 2 मिनट टाइम लगेगा, फिनिश्ड. सो ये एक्सरसाइज जो है आपको रूटीन में लाना है कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए. थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस. नाउ जब हम लोग ब्लड प्रेशर वाला लास्ट वीक डिस्कस कर रहे थे, तभी मैंने बोला था स्ट्रेस इज समथिंग, बिकॉज जो स्ट्रेस होता है वो मुझे खुद को मालूम है, सामने वाले को मैं नहीं बता सकती हूँ. हाउ मेनी ऑफ यू डू यू एग्री विथ मी? प्लीज पुट यस. व्हाई? बिकॉज जब हाइपरटेंशन की बात हो रही थी तो एवरीबॉडी सेड यस. Okay, so this Bhagyashree ji has, I think, asked this question. I'll answer to your question. Yes. Before that, please put on the comment box. कितने लोग मानते हैं? Today I'm not getting any answer on the comment section. उस दिन Friday को धनाधन है आज, है 7-8 है. मुझे अभी दिख, I can't see actually. Maybe then I go down. Yes, got it. Yes, rule मिला. Okay. So stress is something. See, honestly speaking, there are a lot of things, from a child's perspective. If I talk, okay. So what I feel is we have given all the comfort to our parents. Okay, सब कुछ है, अच्छा घर है रहने के लिए. We have economically, we are supporting, everything is fine. The parents are staying alone in a particular place wherein all the facilities are there. लेकिन आपको लगता है उनके point of view से, because all of you, those who are sitting here today attending the session, you will agree with me that children are good, children are taking care in the sense they are not living with you, they are somewhere out. तो आपको जो प्रॉब्लम्स, छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स आते हैं, वो आपको खुद को फेस करना पड़ता है. वो छोटा प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है. पानी नहीं आया तो प्लम्बर को बुलाने का प्रॉब्लम बहुत छोटा प्रॉब्लम है, बट यू हैव टू फेस दैट प्रॉब्लम, राइट? कुछ इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू हुआ तो आपको किसी को बुलाना है, आपको फेस करना है, कोई और नहीं आ रहा है. एम आई राइट? किसी से काम करवाना इतना आसान नहीं है, स्पेशली कोविड में when older people are living alone. तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है so that you are not, मतलब आपको कोई हेल्थ इश्यू ना हो. So how many of you say yes
to what I am saying. आप लोग एग्री करते हो इसको, इस बात को? Yes. Yes, yes. Agree, right? Okay, this because अगर if you ask me or your kids, उनको लगेगा like for example मैं अपनी मम्मी को बोलती हूँ जैसे मेड का टाइम एक होता है फिक्स टाइम, शी स्टेज अलोन, ओके, मेड का एक फिक्स टाइम है, वो टाइम से अगर 5-10 मिनट्स भी उसको डिले हुआ, आई मीन शी इज नॉट अ पर्सन हु इज स्टेइंग इन क्या बोलते लंदन में जिसको इतना टाइम सेंस है, 10 मिनट यहाँ से वहां हो सकता है, राइट? पर वो 10 मिनट में शी गेट्स वेरी स्ट्रेस कि हो गया, नहीं आया, इफ नहीं आई तो फिर मुझे करना पड़ेगा, गार्डनर नहीं आया तो इतने सारे झाड़ को मुझे पानी डालना पड़ेगा. दिस इज जस्ट अ नॉर्मल एग्जांपल आई एम गिविंग यू. क्या होता है कि एक्चुअली दैट स्ट्रेस इज देयर. यू ऑल विल बी एग्रीइंग विथ मी, ऐसा कोई नहीं होगा, बहुत रेयर 1% और 2% पॉपुलेशन ऐसा होगा कि जो बोलता है मुझे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता है, लेकिन अंदर में जो स्ट्रेस है वो सिर्फ हमें पता है. एम आई राइट? सो स्ट्रेस भी एक रीजन है जो कॉन्स्टिपेशन को एग्रीवेट करता है. कैसे एग्रीवेट करता है? पहली बात तो जैसे ही स्ट्रेस हुआ तो अंदर से हमारे जो सारे सिस्टम है उस पे इफेक्ट होने लगता है. सेकेंडली जो हमारे नर्व्स है हम लोग उसको बहुत टाइटन अप करने की कोशिश करते क्योंकि परेशान है. थर्डली जब मोशन होता है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि मॉर्निंग में उठते ही मोशन होना चाहिए. ओके, एनी पॉइंट ऑफ द डे आपको जैसे मोशन होने वाला है, ऐसे लग रहा है होने वाला है, लेकिन आपको किसी बात का स्ट्रेस आ गया और आपका पूरा ध्यान उस पर्टिकुलर काम पे चला गया, तो आप फिर बाद में बाथरूम जाना भूल जाते हैं, वो रह जाता है. एंड अल्टीमेटली होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. डज दिस हैपन विथ यू? ये कॉमन है, ये होता है कि हम लोग जाते हैं, जाना होता है, Hello? लेकिन हम लोग रुक जाते हैं क्योंकि कुछ और काम आ गया है. कुछ नहीं तो बस किसी ने बेल बजाया, कुछ देने आया, या फिर कुछ फोन आ गया अर्जेंट, फोन उठाना होता है. दीज आर स्मॉल स्मॉल स्ट्रेस, इट्स ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज है, पर ये सारी चीजें भी एग्रीवेट करती है Hello? कॉन्स्टिपेशन को. यस गीता जी? जनरली हम लोग कभी कुछ सिटी चेंज करते हैं या और क्या कोई change करते एग्जांपल हैं? अभी जिधर हार्ड वाटर रहता है सिटी ये चेंज क्या करते हैं या city? प्लेस चेंज करते हैं हाँ तो हाँ, उधर पानी का टेस्ट अलग रहता है तो उसकी Correct. वजह से बहुत टाइम ये प्रॉब्लम होता है. तो वो Correct. केस में क्या करने का, पानी चेंज होने एंड हार्ड वाटर. हाँ, ओके. वो टाइम पे तो गीता जी जैसे अगर आप कहीं जैसे कोई कोई पेरेंट्स है हर 4-6 महीने में एक एक बच्चे के पास जब जाके रहते हैं तो उनका वो प्लेस चेंज होता है, उनके सब फूड हैबिट्स, वाटर सब चेंज होता है ना. तो आप उस हिसाब से अगर हम देखें तो पानी का जो चेंज है उसमें आप कुछ नहीं कर सकते. उसमें आपको या तो फिर आप ऐसे जो छोटे छोटे जो घरेलू नुस्खे हैं, जो होम रेमेडीज है, जो अभी मैंने पूरा शेयर किया, या तो आपने ब्लैक रेजिन खाया या एप्पल खाया या जूस पी लिया, या फिर आपने क्या कहते हैं ना जिसमें डाइट में अगर स्प्राउट्स में ये सारी चीजें आप जो चेंजेस लाएंगे उसमें वो धीरे धीरे सेट होने लगेगा. बिकॉज हम लोग कुछ नहीं कर सकते वो पानी का, है ना, अगर हार्ड वाटर है तो कुछ नहीं कर सकते. तो ये छोटे छोटे चेंजेस डाइटरी पैटर्न्स पे करके हम लोग चेंजेस ला सकते हैं. ठीक है, तो ये मैं बात कर रही थी स्ट्रेस की. तो स्ट्रेस जो होता है, जैसे आपको जाना है बाथरूम, वॉशरूम आपको जाना है, लेकिन कुछ काम आ गया तो आप नहीं जाते, तो वहीं पे वो रुक जाता है. और एक बार आपने उसको रोक लिया, सो कंटिन्यूअस अगर रोकने की हैबिट पड़ गई उससे भी कॉन्स्टिपेशन होता है. आई होप आई एम मेकिंग दिस पॉइंट वेरी क्लियर. I hope you are understanding what I'm trying to say, because this is also becomes a normal routine. You have the urge of going to the toilet, and because of some reason you do not go, फिर उसके बाद में वो stop हो जाता है आपको, मतलब आपको emotion stop हो जाता है, फिर आप भूल जाते हैं उसको. Yes, Okay, yes. so that means what? You are throwing out you were planning to throw out the waste out of your body, but due to some reason you stop throwing out that waste.
नाउ दैट वेस्ट रिमेन्स इनसाइड योर बॉडी, एंड वो एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब बहुत बार आप ऐसे करेंगे तो वो सारा टॉक्सिन्स होने लगता है। एक छोटा सा मैं ना क्विकली एग्जांपल देती हूँ टू मेक इट मोर क्लियर। घर में आप, हम लोग सब डस्टबिन अपने घर पे रखते हैं, राइट? तो डस्टबिन है, रोज हाउसकीपिंग वाले को हम लोग बाहर, घर के बाहर रख देते हैं ताकि हाउसकीपिंग वाला आके लेके जाए। अब हमने डस्टबिन बाहर एवरीडे रखा, सपोज कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया कि आपने 2-3 दिन तक डस्टबिन बाहर रखा नहीं, तो उसमें क्या हो रहा है, डस्टबिन से 2 डस्टबिन आपके पास है, एक में पूरा भरा हुआ है कचरा और एक एकदम साफ है जिसमें अभी आपने कचरा डालना स्टार्ट नहीं किया है। तो कौन से वाले डस्टबिन में आपको बहुत सारे फ्लाइज और बहुत सारी वो गंदगी दिखेगी जो भरा हुआ है, राइट? ओके, यस, एम आई राइट? करेक्ट और नॉट? यस यस भवानी। यस यस। उसी तरह से अगर हम अपना जो मोशन है उसको कभी कभार ऐसे स्टॉप कर देते हैं और वो धीरे धीरे कभी हैबिट भी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे रीजन से हैबिट होने के, कुछ काम आ गया या लेजीनेस आ गया या बोर हो गया, या जब अभी बहुत ठंड है तो इतने ठंड में तो और पानी कौन डालेगा, नहीं जाते, तो ये सारी चीजें जो है फिर अंदर कचरा भरने लगता है एंड वहां पे बीमारियां पनपने लगती है। सो मेक श्योर दैट स्ट्रेस इज समथिंग, मैं यहाँ पे बैठ के आपको प्रवचन दूं कि यू लीड अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, बहुत डिफिकल्ट है। जो पर्सन स्ट्रेस अंडरगो कर रहा था उसी को पता होता है कि वो कौन कौन से प्रॉब्लम से गुजर रहा है, बट वी हैव टू पुट अ फुल स्टॉप समवेयर और अ कॉमा समवेयर। तो हमें ये ध्यान रखना है कि डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ इस तरह से आप चीजें करें जिसमें आप थोड़ा थोड़ा करके स्ट्रेस से दूर रहे। वो बहुत सारी चीजें हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ओल्डर एडल्ट है, सीनियर सिटीजन है तो बस बैठ के भजन कीर्तन ही करना है या बैठ के ओनली मेडिटेशन ही करना है स्ट्रेस को दूर भगाने के लिए, ऐसा नहीं है। आपको जो जो चीजें पसंद है, आपको डांस पसंद है, आप ऐसे म्यूजिक चला के डांस कर सकते हैं, आपको म्यूजिक गाने का शौक है तो आप गाना गा सकते हैं, एनीथिंग। आपको कुकिंग का शौक है तो समथिंग यू कुक्ड, एनीथिंग विच इज अ स्ट्रेस बस्टर फॉर यू, स्टार्ट डूइंग दैट। क्योंकि ये स्ट्रेस लेवल थोड़ा थोड़ा करके हम धीरे धीरे जैसे ही कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कि हमारा जो सिस्टम है वो एक तरह से डिसिप्लिन में आने लगेगा। फिर धीरे धीरे डाइट और एक्सरसाइज और स्ट्रेस को कंट्रोल में रख के कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जितना भी क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो। यस, एंड अनदर थिंग इज, इफ यू आर अंडर सर्टेन मेडिकेशंस, कोई भी आप बीपी की मेडिसिन, डायबिटीज की मेडिसिन, कोई आप ऐसे मेडिसिन खा रहे हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, सो देन दैट डॉक्टर कैन ओनली हेल्प आउट इन दिस। बट इन जनरल अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो आप ये सारी चीजें, डाइटरी पैटर्न, स्ट्रेस को दूर करके, एक्सरसाइज करके, यू कैन आराम से गेट रिड ऑफ कॉन्स्टिपेशन। यस, एनीथिंग? Bhagyashree had asked that which all seeds, am I right, have to be included in the diet, correct? Yeah. So seeds में sunflower seed, flax seed, watermelon seed, ये जो 3 seeds है ये commonly available है, इसको आप अपने डाइट में यूज कर सकते हैं। मस्कमेलन सीड्स आर आल्सो अवेलेबल। सो कोई भी फॉर्म में आप कुछ या तो उसको जस्ट ड्राई रोस्ट करके उसका आपने कुछ बना के रखा है, या फूड में आप जो डाल रहे हैं उसमें कुछ बनाते वक्त, दीज सीड्स कैन बी यूज्ड। या if you can also have papaya for, yes, papaya is also an option। जितने भी फ्रूट्स हैं, आप जो भी फ्रूट्स देखेंगे उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें फाइबर्स होते हैं, तो सारे फ्रूट्स आप ले सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। सो ओनली थिंग इज कि बहुत ज्यादा पूरे टाइम कुक्ड फूड खाते न खाते हुए अगर आप बहुत सारे फाइबर्स अपने बॉडी को प्रोवाइड करते हैं इस तरह से, वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जूस, सीड्स, नट्स, ये सब खा के, स्प्राउट्स, ये सब खा के, तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम 99% सॉल्व हो जाती है। ओके,
Yeah. Anything to ask? Just 5 minutes, then we can end the session. Your diet for gastric problem. So gastric problem, I had shared this, जो ये होता है dry ginger powder. So dry ginger powder 1/4 teaspoon में half teaspoon honey मिला के empty stomach you can, or maybe after your lunch थोड़ा 3-4 घंटे के गैप के बाद में you can take. But if you are diabetic you can't take honey. तो सिर्फ आप थोड़ा सा वो dry ginger powder मुंह में डाल के पानी पी लेना है. That can be one solution for gastric problem. Another is just eat ajwain, chew ajwain seeds. Yeah. Okay, I have a question. Yes, Rita ji. Yes, is the amla useful for motion and Yes. castor oil? Castor oil is the best if you are suffering from chronic constipation. So castor oil has to be taken in warm water, adding 1 teaspoon at night. That will help you. And secondly, Amla, you said Amla juice is very good. So Amla good, Amla juice, authentic Amla juice is available in Ayurveda shop, wherein you can mix with aloe vera juice. And that also has to be taken empty stomach in the morning. So agar 7 days ke liye 7 things if you fix, I think that will be the best, because goodness from everything you will get. Say one day 1 apple, day 2 orange, day 3 juice, day 4 black raisins, day 5 avla and aloe vera juice, day 6 normal raisins, brown raisins, day 7 it can be, say for example, like what banana or some bowl, fruit, some smoothie kind of thing. So for 7 days you can fix up these things. Yeah. Okay. So I think you all yeah. So this was about because constipation is something which we do not take very seriously. लेकिन वो seriously लेना जरूरी है. Otherwise system clear नहीं रहेगा तो बीमारियां बढ़ती है. So all of you, thank you for joining, and next this full week I'm not there. See you on Monday. Yes, Sabha, I was just waiting for your dish. What is that? Please unmute yourself and say, what is this? What is it? This is appe. Huh? Appe. This Szechuan paneer, and this green peas curd, and this dokla. Wow. That's great. Great. Nice. So I was just waiting that why Sabha is not showing anything. Great, great. So dhokla, and in the bowl, what is there? The bowl? Bowl में क्या है? This is appe. Appe. Pear. And this is this Szechuan paneer. This lot Okay, all the Szechuan vegetables paneer. with paneer. Acha. Yes. Okay. And this is green peas. Okay. This is Okay. green. Great, great, great. Okay, great. So Sabha always comes up with her own great, great recipes. That's nice. So thank you all for joining. Please do give your feedback. So then see you on with my session again next Monday. So till then, bye. मैं 4-5 दिन आप लोगों से मिल नहीं पाऊंगी. So anyways, bye all of you. Take care. Bye. 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 Bye, Bhavani. Bye.